Hello everyone. Today we are going to learn about ABG analysis and ABG interpretation. Before starting the topic, I introduce myself. I Akash. I welcome you to on my channel and Quest classes. Today we are going to learn about ABG analysis and ABG interpretation. So we are going to start our topic. First of all, we all have to know what is the ABG analysis or what is ABG interpretation or why we are doing the ABG sampling or ABG test. So ABG test we are doing to measure O2. I written here to measure O2 and CO2 level in our blood, that is oxygen and carbon dioxide level in our blood. Second thing is used to measure pH level of our blood, means acid and base level in our blood, which is maintain the pH level of blood. Third thing is why we are doing ABG sampling, why we are doing ABG test. So ABG is provide us information. ABG provide us information and ABG provide clues about to us, which which is how well lungs, kidneys and heart are working, how well they doing their jobs, how well they are doing their job. So next thing is what is the ABG sampling. Main thing is what is the ABG sampling. ABG sampling, in the ABG sampling we are withdraw sample or we are withdraw blood from arteries, not from the vein. We are taken sample from the arteries. There are four most common sites to taken and to withdraw the sample of ABG. The first most common site is the brachial artery. Brachial artery is situated in our antecubital fossa. This is antecubital fossa. Second most common site is radial artery. Radial artery is situated here. The thumb side of our hand is the radial artery. You can feel there. This is the radial artery. Third most common site is the ulnar artery. Ulnar artery, where are the ulnar arteries situated? Ulnar artery again in our hand. The little finger side, you can feel here, the little finger side, the ulnar artery is situated. And the last most common site is the femoral artery. Where the femoral artery is situated? The femoral artery is situated in our groin area. You can feel here in groin area, the femoral artery is situated here. These are the most four common sites to take and to withdraw the ABG sampling. Before taking from sample from the radial and ulnar artery, always do before sampling and before puncture the patient from the needle, always do Allen test. Allen test. Why we are doing Allen test? Allen test is doing to detect or to check the patency of the radial and ulnar artery. The both arteries situated in our hand. This is thumb side is the radial artery and little finger side is the ulnar artery. To check their patency, we are doing Allen test. So after taking the ABG sample, always we all have to know about the normal values. अब नॉर्मल वैल्यू जब तक पता नहीं होगी तो ABG सैंपल लेने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब ले लिया लेकिन सैंपल ले लिया, हमें पता ही नहीं कि पेशेंट एसिडोसिस की साइड जा रहा है, एल्कलोसिस की साइड जा रहा है, क्योंकि हमें नॉर्मल वैल्यूज नहीं पता है। तो सबसे पहले एसिडोसिस स्टेट, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस की एसिडोसिस और एल्कलोसिस स्टेट पता होने से पहले सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यूज सबसे पहले क्या है? पीएच की नॉर्मल वैल्यू ब्लड में जब भी होगी तो 7.35 टू 7.45 पीएच की नॉर्मल वैल्यू होगी। पीएच किस लिए देखते हैं? ब्लड की पीएच लेवल ब्लड का पीएच लेवल देखने के लिए पीएच की वैल्यू हम देखते हैं। उसके बाद आता है PCO2 मीन पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी के लिए उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है? 35 टू 45 इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ PCO2। नेक्स्ट थिंग इज SCO3 किसके लिए देखना है? मेटाबॉलिक के लिए। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या देखना है? SCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट मीन्स SCO3 इज बेस इन नेचर एंड PCO2 इज एसिड इन नेचर। ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि PCO2 जो है एसिडिक इन नेचर है एंड बाइकार्बोनेट है बेस इन नेचर है, मतलब एल्कलाइन इन नेचर है।
फोर्थ थिंग इज PO2। PO2 मीन्स कार्बन, मतलब PO2 मीन्स पार्सल ऑक्सीजन प्रेशर इन आवर ब्लड। वो कितना होना चाहिए? 80 से 100% तक, 80 to 100% PO2 लेवल मेंटेन करना चाहिए बॉडी को नॉर्मली, अगर हेल्थी पर्सन है तो। अगर इन 4 चीजों में कोई भी गड़बड़ आ रही है, यह नॉर्मल वैल्यू, एक्सेप्ट दीज थिंग्स, एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, अगर कोई भी अब नॉर्मलिटी पेशेंट में आ रही है तो वो हमें बताएगी कि ब्लड बॉडी पेशेंट का ब्लड एसिडिक साइड जा रहा है या एल्कलाइन की साइड जा रहा है। एबीसी का मतलब ये है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो O2 और CO2 का लेवल चेक करने के लिए हम मेनली करते हैं, और बेस और एसिड का लेवल चेक करने के लिए हम देखते हैं। अब ये तो थी नॉर्मल वैल्यूज। अब हमें ये भी देखना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए चेक करने के लिए क्या होगा, किस में चेंज आएगा तो रेस्पिरेटरी होगा, किस में चेंज होगा तो मेटाबॉलिक होगा। इसमें 2 ही चीजें देखो होती है, या तो रेस्पिरेटरी मिलेगा या मेटाबॉलिक मिलेगा। अब रेस्पिरेटरी की बात आई, रेस्पिरेटरी यहाँ लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी की अगर PCO2 में चेंजेस आए तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है। अगर HCO3 बाइकार्बोनेट में चेंजेस आए तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, डेफिनेटली किडनी में प्रॉब्लम आई हुई है जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पीएच हमें नॉर्मली देखना ब्लड के लिए, सबसे पहले वैल्यूज आती है जब भी पेशेंट की इमरजेंसी सैंपल करके आते हैं तो सबसे पहले ऊपर देखने को मिलता है पीएच, देन PCO2, देन HCO3, PO2, देन PO2। अब 3 चीजें हमें मेनली देख लिए एसिडिक एंड बेसिक स्टेट देखने के लिए पेशेंट की, पीएच, PCO2 और HCO3। अब बात आई, अब देखना कैसे है कि पेशेंट एसिड की साइड कैसे जा रहा है और बेस की साइड कैसे जा रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कैसे हो रहा है। तो ये थी नॉर्मल वैल्यू। अब नॉर्मल वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखना है कि नीचे जाएगा तब एसिड की साइड आ रहा है या ऊपर जाना तब एसिड की साइड जा रहा है। तो पहले देखें पीएच और HCO3, पीएच बॉडी का पीएच और HCO3 दोनों सेम होंगे, मतलब जब भी पीएच 7.35 से नीचे आएगा तो पेशेंट जाएगा एसिडोसिस की तरफ, 7.45 से ऊपर गया बेस की साइड गया, यह आया एसिड की साइड। मतलब जब भी बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे आया तो पेशेंट जाएगा एसिडोसिस की तरफ। जब भी पेशेंट का ब्लड गया 7.45 से ऊपर तो ये जाएगा एल्कलोसिस की तरफ। मतलब पीएच, नॉर्मली पीएच स्केल हम देखते हैं तो नीचे आता है तो एसिड की साइड, ऊपर जाता है तो बेस की साइड। सेम यहाँ पे है, पीएच स्केल का मतलब ये है कि जब भी 7.35 से नीचे आया तो ये आएगा एसिड की तरफ, 7.45 से ऊपर गया तो बेस की तरफ, मतलब एल्कलोसिस, नीचे आया तो एसिडोसिस। अब देखना है PCO2, PCO2 मतलब रेस्पिरेटरी के देखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एसिड इन नेचर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। इसका नॉर्मल सा हमें देखना है कि जब भी 35 to 45 इसकी नॉर्मल वैल्यू, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड 35 से नीचे आई तो पेशेंट जाएगा एल्कलोसिस की साइड, बट जब भी 45 से ऊपर गया तो जाएगा एसिडोसिस की तरफ। यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर में जितनी ज्यादा बॉडी में रुकेगी कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स जितने कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन करेंगे, मतलब जितना बॉडी में रोकेंगे उतना ही, मतलब जहर रोक रहे हैं अंदर, जहर रोक रहे हैं मतलब एसिड को रोक रहे हैं। जितना 45 से 50 रोकेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, एसिड का अमाउंट बॉडी में ज्यादा रुक गया, जिसकी वजह से पेशेंट एसिडोसिस के साइड जा रहा है। 35 से नीचे जब भी आई कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जब भी 35 से नीचे आई तो हमें समझना है कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बॉडी से वॉश आउट कर रहे हैं। हम जब भी सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड जितना था बॉडी में वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जो बेस इन नेचर था HCO3 बाइकार्बोनेट या ऑक्सीजन थी वो ज्यादा रिटेन हो रही है। ऑक्सीजन मतलब बेसिक इन नेचर है, बेस इन नेचर है, जिसकी वजह से बेस तो जो ज्यादा बॉडी में बच रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो 35 थी मेंटेन करके रखे हुई थी पीएच लेवल को 35 से 45, वो 45 से ज्यादा हो गए तो एसिडोसिस कर रही है, बट 35 से ज्यादा वो निकल गई, मतलब 35 से कम बच गई, 20% बच गई, 35 से 20 बच गई, बाकी सारी बाहर निकाल दी।
35 नॉर्मल रखनी थी, 35 से नॉर्मल आ गई नीचे, कम रह गई, मतलब ज़्यादा वॉश आउट कर दी, तो वो एल्कलोसिस की साइड जाएगा। हमें ये समझना है कि जितना एसिड था वो बॉडी ने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से बॉडी में बेस बस गया और उसकी वजह से एल्कलोसिस हुआ। और 45 से ऊपर गया मतलब उसने एसिड को भीतर अंदर के अंदर रोक लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो गया और जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग देखनी है SCO3। SCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या बेसिक इन नेचर है, बेस इन नेचर है। मतलब SCO3 देखा, जब भी SCO3 22 to 26 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, 22 से नीचे आएगा जब भी तो एसिडोसिस करेगा, 26 से ऊपर गया तो एल्कलोसिस करेगा। मतलब ये तो एसिडिक इन नेचर था, ये बेस इन नेचर है। बेस इन नेचर है मतलब 22 से नीचे जब भी आया मतलब बेस बाहर निकाल दिया, मतलब बेस बाहर निकाल दिया, एसिड बच गया। एसिड मतलब इसका pH और SCO3 सेम रहता है हमेशा। जब भी देखोगे आप रोम एक होता है, रोम मेथड होता है, उससे याद कर सकते हो या फिर कंसेप्ट मेथड से आप याद कर सकते हो। रोम मतलब रेस्पिरेटरी ऑपोजिट बट मेटाबॉलिक इक्वल। ये pH से हम कंपनसेट मतलब pH से वो करके चलते हैं, कंपैरिजन करके चलते हैं pH से। उसका उत्तर रोम मतलब रेस्पिरेटरी तो ऑपोजिट है बट मेटाबॉलिक इक्वल है। हमेशा ये याद कर सकते हो या फिर आप कंसेप्ट क्लियर करके कर सकते हो। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकला तो एल्कलोसिस होगा, बेस ज़्यादा बाहर निकला तो एसिडोसिस होगा। यही चीज़ है, बेस बाहर निकला तो एसिडोसिस, एसिड बाहर निकला तो एल्कलोसिस, ये होगा। अब बाइकार्बोनेट देखना है, 22 से कम जब भी बच गया बॉडी में, 22 से कम बच गया मतलब बेस ज़्यादा बाहर निकाल दिया तो बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एसिडोसिस देखने का मिलेगा। जब भी मतलब 22 से नीचे आएगा तो एसिड होगा, 26 से ऊपर हुआ तो बेस एल्कलोसिस होगा। इसमें 35 से नीचे होगा बेस बढ़ेगा बॉडी में, 45 से ऊपर गया एसिड बढ़ेगा, याद रखना है। अब हमने सैंपल निकाला पेशेंट का, सैंपल निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई पेशेंट की वैल्यू क्या है। पेशेंट के हमने देखा ABG रीडिंग देखी उसमें, तो सबसे ऊपर हमने देखा pH तो उसका 7.20 आया हुआ है, 7.20 आया। PCO2 उसका 50 आया हुआ है, बट बाइकार्बोनेट है SCO3 वो 25 आया है। अब नॉर्मल वैल्यू हमें देखनी है। अब pH की नॉर्मल वैल्यू देखे सबसे पहले, तो pH की नॉर्मल वैल्यू थी 7.35 टू 7.45। अब ये देखना है नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की साइड जा रहा है pH। अब pH हमने देखा तो 7.35 से नीचे की साइड आ रहा है, मतलब 7.20 है, 7.20। तो ये हमें यही क्लियर हो गया कि जब भी नीचे आ रहा था pH तो एसिडोसिस की साइड बॉडी जा रही थी, जब भी pH ऊपर जा रहा था तो एल्कलोसिस की साइड जा रही थी। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया सबसे पहले pH हमने देखा 7.20 है, 7.35 तक उसका नॉर्मल था, 7.20 है मतलब ये नीचे आ रहा है, मतलब एसिडोसिस की साइड जा रहा है। एक चीज तो हो गई यहाँ पे क्लियर कि ब्लड जो है वो एसिडोसिस की साइड जा रहा है। अब नेक्स्ट थिंग हमें देखनी है कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अब वो देखनी है। अब उस चीज के लिए देखना पड़ेगा PCO2 हमें रेस्पिरेटरी के चेक करना है लंग्स के लिए, और SCO3 करना है बाइकार्बोनेट के लिए, मतलब मेटाबॉलिक के लिए और किडनी के लिए। तो हमारी नजर गई फिर PCO2 पे। PCO2 हमने देखा कि PCO2 पेशेंट का आया हुआ 50, नॉर्मल वैल्यू तो अब इसकी थी 35 टू 45, बट PCO2 पेशेंट का आया हुआ 50 हमने देखा, तो मतलब भाई नीचे तो आ नहीं रहा, 45 से ऊपर की साइड ही जा रहा है। PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पेशेंट के बॉडी में ज्यादा ही रुक रही है कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स अनेबल है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही रिटेन करके रखा हुआ है, अंदर ही रोके हुए कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। 45 से ज्यादा बढ़ा, 45 से ऊपर की साइड जा रहा है, तो देखो नॉर्मल वैल्यू में यहाँ लिखा हुआ है एसिडोसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, जो कि बॉडी में ज्यादा रुक के एसिडोसिस कर रही है, मतलब ऊपर गया तो यहाँ भी एसिडोसिस हो रहा है। यहाँ होगी दो चीज क्लियर कि ब्लड में भी एसिडोसिस की साइड जा रहा है,
रेस्पिरेटरी PCO2 भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो तीसरी चीज देखनी है बाइकार्बोनेट SCO3। SCO3 हमने देखा, इसकी नॉर्मल वैल्यू थी 22 से 26 तक, 22 से 26 तक थी, बट SCO3 की वैल्यू आई हुई है यहाँ पे 25 मतलब इसने ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 22 टू 26 के बीच में, मतलब ये नॉर्मल आई हुई है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल है। तो इसका कंक्लूजन निकल के ये आया, इसका रिजल्ट निकल के ये आया कि ब्लड था वो भी एसिडोसिस की साइड जा रहा है और PCO2, अब ब्लड में PCO2 किसकी वजह से हो रही है कि लंग्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रिटेन हो रही है, या लंग्स में प्रॉब्लम भी नहीं आई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर रहा है, बॉडी ज्यादा इनहेल हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। एसिडोसिस किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी की वजह से, मतलब लंग्स की वजह से। तो इसका कंक्लूजन और रिजल्ट निकल के क्या आया, तो कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब एबीजी का रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एबीजी में क्या देखने को मिला कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा, ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रिजल्ट निकल के आया कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो ये था एक वैल्यू। अब देखना है हमें नेक्स्ट थिंग में कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे हो रहा है। अब हमारे पास आ गई दूसरी रीडिंग। अब दूसरी रीडिंग में हमें देखना है कि क्या हुआ है भाई। अब दूसरी रीडिंग हमने देखा कि पीएच पेशेंट का कितना है, पीएच पेशेंट का 7.50। अब ये देखना है ब्लड के लिए, ब्लड का पीएच कितना है 7.50। अब फिर से नॉर्मल वैल्यू देखो, नॉर्मल वैल्यू में 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड। सो यहाँ पे हमें देखना कि ब्लड किसकी साइड जा रहा है, एसिडोसिस की साइड जा रहा है, एल्कलोसिस की साइड जा रहा है। मतलब 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच, बट द पीएच ऑफ द पेशेंट इज गोइंग इन द alkalosis side, mean 7.50 is more than 7.45, मतलब ऊपर की साइड ही जा रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा। पिछले पेशेंट को देखा था कि इसका पीएच नीचे आ रहा था, बट इसमें पीएच कहाँ है, ऊपर की साइड जा रहा है। ऊपर की साइड जा रहा है मतलब यहाँ भी लिखा हुआ है कि बेस मतलब एल्कलाइन मतलब एल्कलोसिस की साइड जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ तो क्लियर हो गया भाई कि यहाँ एल्कलोसिस की साइड है पेशेंट, एसिडोसिस की साइड नहीं है, यहाँ एल्कलोसिस साइड, यहाँ हो गया इतना क्लियर। अब देखना है आगे कि ये किसकी वजह से हो रहा है, या तो रेस्पिरेटरी की वजह से मिलेगा या मेटाबॉलिक की वजह से मिलेगा। तो यहाँ देखना है सेकंड थिंग PCO2 हमने देखा, PCO2 की साइड आए तो पेशेंट की वैल्यू आई है 28 इज लेस देन द 35 और 45, मीन पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है जो वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब एसिड बाहर निकल रहा है और बेस बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई तभी इसका लेवल इंक्रीज हुआ है ना, मतलब कम हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई तो यहाँ कम देखने को मिला, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम है मतलब बॉडी के अंदर एसिड कम है। एसिड कम है का मतलब क्या है कि पेशेंट जाएगा एल्कलोसिस की साइड। जब भी बॉडी में एसिड कम होगा तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ने की वजह से एल्कलोसिस होगा। तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि ये भी ऊपर की साइड नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ एल्कलोसिस होगा। नीचे की साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाश आउट हो रही है, जिसकी वजह से बेस बॉडी में बढ़ रहा है, बेस बढ़ने की वजह से एल्कलोसिस हो रहा है। अब देखनी है तीसरी चीज़ बाइकार्बोनेट मतलब मेटाबॉलिक के लिए हमने देखा कि इसकी 22 टू 26 नॉर्मल वैल्यू है, बट फिर से नॉर्मल आया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मेटाबॉलिक में फिर से कोई चेंज नहीं है, ये नॉर्मल है। मतलब भाई मेटाबॉलिक का कोई रोल नहीं है इसमें, रोल किसका है, रेस्पिरेटरी का। एल्कलोसिस की साइड पेशेंट किसकी वजह से जा रहा है, रेस्पिरेटरी की वजह से जा रहा है, लंग्स की वजह से जा रहा है। लंग्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वॉश आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम आ चुका बॉडी के अंदर। 28 आ गया, 35 मेंटेन करके रखना था, 35 से नीचे आके 25 पे आगे रुक गया, 25 पे आगे रुका, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बेस ज़्यादा बढ़ा, एसिड बाहर निकल गया, वॉश आउट हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिला।
अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम मिली पेशेंट में, अगेन में पेशेंट में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम मिली। ये आया रिजल्ट निकल के फिर से कि पेशेंट को क्या हो रखा है, पेशेंट को रखा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। किसकी वजह से, किसका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है लंग्स का, और डिफॉल्ट है या तो डिफॉल्ट है लंग्स का जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी का, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वॉश आउट हो रही है, वॉश आउट होने की वजह से एसिड बाहर निकल रहा है और बेस ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को एल्कलोसिस हो रहा है। एल्कलोसिस किस में हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये थी वैल्यू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट थिंग आती है मेटाबॉलिक के लिए। मेटाबॉलिक के लिए अभी देखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आई फिर से पेशेंट की। उस पेशेंट को हमने क्या देखा था, पिछले वाले को उसको रखी थी रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम। अब चेक करना है अब फिर से रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो इसमें हमने देखा पेशेंट की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले फिर पीएच देखा। पीएच की वैल्यू तो इसमें क्या आई हुई है, पीएच की वैल्यू आई हुई है इसमें 7.25। 7.25 का मतलब है डाउन आ रही है, मतलब 7.35 7.45 नॉर्मल वैल्यू है, उससे नीचे आ रही है, नीचे आ रही का मतलब डाउन आ रही है, मतलब एसिड की साइड जा रही है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को। क्लियर हो गया, यहाँ पे हो गया क्लियर, एसिडोसिस है। अब यहाँ देखना है रेस्पिरेटरी के पीसीओ2 रेस्पिरेटरी के लिए देखना है। अब पीएसओ2 हमने देखा, पीएसओ2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे तो 40 आया हुआ है भाई, 40 आया, 35 to 45 is the normal value of PCO2, but PCO2 value is 40. 40 means the PCO2 is normal तो 35 to 45 के बीच में आया हुआ है। यहाँ तो कोई चेंज नहीं देखने को मिला, ये नॉर्मल, मतलब रेस्पिरेटरी का रोल क्लियर है, रेस्पिरेटरी की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है हमें बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में देखेंगे बाइकार्बोनेट में क्या हो रहा है। बाइकार्बोनेट में हमने देखा SCO3 22 से 26 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो 20 आया हुआ है पेशेंट का। 20 देखा मतलब डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है मतलब एसिडोसिस की साइड जा रहा है। हो गया क्लियर। एसिडोसिस क्यों हुआ, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। बेस इन नेचर का मतलब क्या है, जब भी मतलब बेस इन नेचर का क्या हुआ, बेस बॉडी में कम हुआ तो एसिड बढ़ा, बेस कम हुआ तो एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एसिडोसिस। फिर से बता रहा हूँ, PCO2 था कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर थी, SCO3 बेसिक इन नेचर है। SCO3 बेसिक इन नेचर की वजह से क्या हुआ, 22 से 26 उसका नॉर्मल पीएच मेंटेन करके रखे हुआ था ब्लड का, बट बेस कम हुआ बॉडी में बेस कम हुआ, बेस कम होने की वजह से एसिड इंक्रीज हुआ। नॉर्मल सी बात है, बेस कम होगा तो एसिड बढ़ेगा, एसिड कम होगा तो बेस बढ़ेगा। तो यहाँ बेस कम हो रहा है, बेस कम होने की वजह से एसिडोसिस हो रहा है। तो यहाँ कंक्लूजन फिर से क्या निकल के आया पेशेंट का, रिजल्ट क्या निकल के आया पेशेंट का, कि इसको मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। हो गया साहब, फिर से रिवाइज करें। 7.25 मतलब पीएच नीचे आ रहा है, एसिडोसिस। PCO2 देखा, PCO2 नॉर्मल है, फिर रेस्पिरेटरी का कोई रोल ही नहीं है। PCO2 क्लियर, लाइन क्लियर। SCO3 मतलब मेटाबॉलिक के लिए, किडनी के लिए देखा, SCO3 देखा 20 आ रहा है, 22 से नीचे आएगा जब भी एसिडोसिस होगा। तो किसकी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक की, किडनी की प्रॉब्लम है भाई। किडनी प्रॉब्लम करके बैठी हुई है, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है। जो ब्लड का पीएच मेंटेन करना है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है, वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को देखने को मिलना है। ये होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखना है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा अभी देखते हैं। अब हमारे पास आ गई फिर से रीडिंग, एक और रीडिंग आ गई पेशेंट की। इस रीडिंग में हमें क्या देखने को मिला, इस रीडिंग में हमें देखने को मिला पीएच इसका 7.48 है। 7.48 का मतलब क्या है, अब नॉर्मल वैल्यू में यहाँ लिखा हुआ है, साहब नॉर्मल वैल्यू लिखा हुआ है। 7.458 का मतलब है पीएच इंक्रीज मार रहा है, पीएच ऊपर जा रहा है, मतलब एल्कलोसिस। PCO2 देखा, रेस्पिरेटरी की दिक्कत थी, रेस्पिरेटरी की दिक्कत के लिए देखने के लिए देखा, रेस्पिरेटरी नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल आया हुआ है, कोई चेंज नहीं है।
ये आ गया नॉर्मल, कोई चेंज नहीं रेस्पिरेटरी का। अब देखना है इसका SCO3 का। SCO3 में क्या दिक्कत आई हुई है देखें। SCO3 में देखें भाई 22 से नीचे आएगा तो एसिडोसिस होगा, 26 से ऊपर जाएगा तो एल्किलोसिस होगा। नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। भाई 26 से तो भाई ज़्यादा ही है, 35 ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर मार रहा है, बाइकार्बोनेट ऊपर जा रहा है, यहाँ हो रहा है एल्किलोसिस, एल्किलोसिस हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन निकल के फिर से ही आया है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी की तो दिक्कत है नहीं, हो गया कंफर्म। रेस्पिरेटरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत फिर से है मेटाबॉलिक की। मेटाबॉलिक में अब क्या है, मेटाबॉलिक में देखना एसिडोसिस कर रहा है एल्किलोसिस कर रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया, वैल्यू आ गई थी 22 से नीचे आया था एसिडोसिस, तब 26 से ऊपर जा रहा था एल्किलोसिस। तो 26 से तो ऊपर ही है, 35 26 से ऊपर है। तो इसको हमें पेशेंट को देखने को मिला मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। पेशेंट को क्या देखने को मिला, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ये हो गई चारों चीजें, रेस्पिरेटरी का भी देख लिया, मेटाबॉलिक का भी देख लिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख लिया, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस देख लिया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देख लिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देख लिया। ये थी चारों चीजें। फिर से रिवाइज कर रहा हूं एक बार। पीएच की नॉर्मल वैल्यू देखनी है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 टू 7.45। जब भी 7.35 से नीचे आया तो एसिडोसिस, 7.45 से ऊपर गया तो एल्किलोसिस। PCO2 देखना है। PCO2 किसके लिए चेक करना है, रेस्पिरेटरी के लिए, मतलब लंग्स के लिए। PCO2 में 35 से जब भी नीचे आया तो एल्किलोसिस, बट 45 से जब भी ऊपर गया तो एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वॉश आउट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिड है, एसिड ज्यादा वॉश आउट हो गया तो बॉडी में बचा बेस, बेस बढ़ने की वजह, बेस बचा, बेस की वजह से क्या होगा, एल्किलोसिस। और ज्यादा बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड 45, मतलब 45 से ऊपर है तो एसिडोसिस। ये हो गया रेस्पिरेटरी के लिए, मतलब 35 से नीचे तो एल्किलोसिस, 45 से ऊपर एसिडोसिस। अब देखने बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक के लिए SCO3। SCO3 22 से 26 नॉर्मल वैल्यू, 22 से नीचे आया तो एसिडोसिस, 26 से ऊपर गया तो एल्किलोसिस। ये थी इसकी नॉर्मल वैल्यूज और इसके रिजल्ट क्या निकल के आते हैं। इससे अलग चीज होती है कि बॉडी कंपनसेट करती है। ये तो थी नॉर्मल, एक ही चीज थी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक की। अब बॉडी में काम करता है कंपनसेटरी सिस्टम। कंपनसेशन सिस्टम में क्या होता है, जब भी लंग्स काम करना, जब भी लंग्स में कोई गड़बड़ आई तो लंग्स को कंपनसेट करने के लिए अब एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए, एक दूसरे का काम साथ देने के लिए, दोस्ती मान लो, एक दूसरे का साथ देने के लिए जब भी इसमें कमजोरी आएगी तो ये कंपनसेट करेगी। लंग्स में गड़बड़ हुई तो किडनी उसका काम, उसको कंपनसेट करने के, मतलब जो गड़बड़ वो कर रहा है उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए किडनी काम करेगी। जब भी किडनी में गड़बड़ हुई, इसकी गड़बड़ ठीक करने के लिए लंग्स काम करेगा, उसको कहते हैं कंपनसेटरी सिस्टम। अब उसमें देखेंगे कि जब भी बॉडी रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की साइड जाएगी, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की साइड आ जाएगी तो मेटाबॉलिक किडनी है जो उसमें एसिडोसिस करने की कोशिश करेगी। मतलब बेस रेस्पिरेटरी तो क्या है, एसिडोसिस कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है, बट किडनी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है, मतलब बेस एसिडोसिस बढ़ा रहा है। बट मेटाबॉलिक क्या करेगा, उसमें एल्किलोसिस करेगा, मतलब उसको बेस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बेस जाके एसिड को काट सके, यहाँ पे जाके दोनों एक दूसरे काट सके और नॉर्मल कर सके। ये होगा कंपनसेटरी सिस्टम। कंपनसेशन की वैल्यूज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइज एंड कमेंट प्लीज। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो कृपया करके, समझ ना आए तो कमेंट में बताइए, अगर समझ आया तो जब भी कमेंट करिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल्सो प्लीज।